Thankful to this institute, founder Vishwanath Karad, Rahul Karad, and head of department Professor Parimal ji, Lenin Kumar ji, and all dear students. As I have been told by your course coordinator Professor Lenin Kumar ji, I have to center on two things today, and that is the corruption and governance, on which my major work is there. And the second part of the lecture would be on contesting election and campaigning. This is for the today's session, and for the tomorrow session is political reform, constitutional reform, organizational building and strategic management. Dear students, last year I had also joined this your esteemed institute, and this course School of Governance Study is definitely a very innovative, pioneering and very required thing for the probity in the polity of the country, for creating a very robust kind of public order, public leadership and the quality in the governance. Anything starts from the academic circle, then it percolates down to the practical world. As we all know, we are the largest democracy of the world, very structured democracy, 3-tier and 4-pillar democracy. And when we talk about any sort of good governance, the basic focus goes on the issue of corruption. Corruption is not a simple issue. Corruption कोई एक आसान चीज नहीं है. करप्शन एक समुद्र मंथन की तरह है. भ्रष्टाचार जो टू माय माइंड इट्स अ जननी ऑफ ऑल प्रॉब्लम, इट्स अ मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम. एनी इशू यू टेक, एनी पब्लिक इशू यू टेक फ्रॉम एनी आइडियोलॉग, any political follower, any common citizen, and anybody, you find that there is some malgovernance, there is some problem of integrity, corruption, which has so many names: bribery, misappropriation, graft, patronage. So many things are there. So I just start my lecture on this topic for which the PPT presentation is there: corruption, good governance, and system change. And what Professor Lenin Kumar had confiscated this topic. तो मैं ये चाहूँगा कि as I have been told by some student also कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में बोलना है, तो मैं प्रयास करूँगा कि हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलूँ, चूँकि मराठी भाषी भी लोग हिंदी समझ लेते हैं और अंग्रेजी तो साउथ के लिए लिंक लैंग्वेज है और अब तो हिंदी भी लिंक लैंग्वेज बन चुका है. तो टॉकिंग अबाउट करप्शन, ये मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू एलोबरेट द वर्क ऑफ माय वर्क ऑन विच सो मेनी थिंग्स हैव बीन टेकन. उसमें ये है कि इन ऑल आई हैव ऑथर्ड 2-3 बुक्स. आई वुड लाइक टू जस्ट शो माय बुक्स आल्सो. This is the a crusade against corruption on the neutral path. This is in 2 volumes. It's an encyclopedic book. It has total 9 chapters. And when we talk about the remedial of corruption, which is comprised of so many policy reform, vision plan, and all kind of changes in different spheres of society. Because corruption is not a one center or one point problem, it's an interrelated problem. It's a woven with so many problems, and one problem starts creating another problem and vice versa and so on. So in that manner, the second follow-up book, this is a dialogue on system change. It's a Hindi part, and this corruption book has also Hindi edition. This भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक महायुद्ध, भ्रष्टाचार का विश्वकोश. So I would like to mention total 9 chapters which I have mentioned in my book, which is very necessary to tell you before explaining all aspects of corruption and all kind of reform and remedial measures. मैं ये बताना चाहूँगा कि जो करप्शन की किताब के जो मेरे 9 चैप्टर हैं,
क्योंकि किताब एक एकेडमिक ऑब्जेक्ट होता है, तो मैंने करप्शन के जितने डेफिनेशन, मीनिंग और उसकी पूरी जो सिनेप्सिस है वो पूरे मैंने जब रिसर्च किया वर्ल्ड वाइड, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मुझे करीब करीब 200 to 300 डेफिनेशन मिले और सब डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट अलग है। कोई मार्केट के आधार पर करप्शन को देखता है, कोई जो है गवर्नमेंट के रेगुलेशन के आधार पर देखता है, कोई मोरालिटी के आधार पर देखता है, कोई बिल्कुल टेक्निकलिटी के आधार पर देखता है, कोई बिल्कुल पब्लिक गवर्नेंस के आधार पर देखता है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आधार पर देखता है। समाज के उसके अपने अलग कॉन्टेक्स्ट है, रोज जो पब्लिक प्रॉब्लम झेलती है उसके कॉन्टेक्स्ट है, और कुछ टेक्नोलॉजी के आधार पर लोग देखते हैं। तो इस आधार पर जो मेरी जो किताब है वो कुल 9 चैप्टर जो है, तो उसमें पहला चैप्टर केवल डेफिनेशन और मीनिंग है। फिर दूसरा चैप्टर है जो करप्शन का जो एथिक्स है, जो करप्शन का जो एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि समाज इसके बारे में क्या सोचता है, परिवार इसके बारे में क्या सोचता है, और परिवार में जब हम लोग अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो सारे हम लोग सोचते हैं कि कैसे हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी, वेदर बाय हुक और क्रूक, बाय अप्लाइंग लीगल और इलीगल मीन्स। और जब हम वही मंच पर जाते हैं, जब किसी पोडियम पे जाते हैं, किसी गवर्नमेंट के पब्लिक डिबेट के फोरम पर जाते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मोरालिटी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। और तो हमारा बिल्कुल एक स्टैंड बदल जाता है, तो वी पीपल आर हिपोक्रेट। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि करप्शन जो ऐसा प्रॉब्लम है कि वी ऑल आर सफरर एंड वी ऑल आर प्रेयर बोथ। हम कहीं ना कहीं करप्शन में अपना योगदान करते हैं और कहीं ना कहीं उसके भुक्तभोगी भी होते हैं, लेकिन इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? नुकसान सोसाइटी एट लार्ज होता है, पब्लिक एट लार्ज होता है इसका नुकसान। और इस वजह से हमारा इस पर ये मानना है कि पहले समाज की पूरी जो है ना नैतिकता बदले, पहले हमारा नजरिया बदले, हम पहले अपने रोल निभाने को तैयार हो और फिर जो है पब्लिक इंतजामिया से किसी चीज का एक्सपेक्ट करें। तो एक जो दूसरा मेरा चैप्टर है पर वो 110 पेज का चैप्टर है, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, सोसाइटल एस्पेक्ट जो है। और फिर तीसरा चैप्टर जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ करप्शन, वेरी फ्रॉम एंशिएंट एज, फ्रॉम ग्रीक, रोमन एंड वैदिक एज से लेकर के प्री मिडाइवल, मिडाइवल, पोस्ट मिडाइवल और फिर जो है मॉडर्न एज। फिर इंडिया की जो हिस्ट्री है वो चाणक्य ने जो किताब लिखा अर्थशास्त्र, वो एक that was the book for the statecraft। ये लो वाला दफा तो चाणक्य ने जो जो अर्थशास्त्र लिखा उसमें भी बताया गया कि एक जिह्वा अगर दांतों के बीच में घिरी रहेगी तो वह ईमानदार नहीं रह सकती, दांत को नया स्वाद चाहिए तो वो करप्शन खोजेंगे। काजल की कोठरी में कोई अपने को सफेद नहीं रख सकता, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने खुद बताया कि वो एक विदेशी मेहमान आए तो विदेशी मेहमान आए तो उससे पहले वो अपना प्राइवेट दिया जला करके अपना प्राइवेट काम कर रहे थे, और जब विदेशी मेहमान आए तो उसे बुझा करके उन्होंने जो एक दूसरा दिया जलाया। तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, कि वो सरकार का काम सरकारी खर्च से करेंगे, निजी काम सरकारी खर्च से नहीं करेंगे। तो एंशिएंट एज से लेकर के फिर ब्रिटिश एज, मुगल काल में कैसे नजराना, इकराना, शुक्राना ये सब कल्चर आया भारतीय समाज में। फिर ब्रिटिश काल आता है। ब्रिटिश काल में एक एस.एस. गिल ने एक पैथोलॉजी ऑफ करप्शन किताब लिखी है। उन्होंने इस बात को दिखाया है कि ब्रिटिशर्स वे बड़े रूल बाउंड थे, बड़ा उनका रोबस्ट काइंड ऑफ उनकी सिविल सर्विस थी, और उसको वो कहते थे कि स्टील फ्रेम। तो वो उनका कहना है कि वो हर चीज बड़े तरीके से होता था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया और जब ब्रिटिशर्स ने काफी सारे जो है वो दिए, कॉन्ट्रैक्ट दिए, ठेके दिए वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सप्लाई के लिए, तो फिर उनका कहना है कि करप्शन का वहीं से बीजारोपण होता है सेकेंड वॉर से, ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजीम। एंड आफ्टर दैट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री फ्रॉम नेहरू काल टू नरेंद्र मोदी काल। वी हैव ए थाउजेंड्स ऑफ करप्शन लिस्ट, यू कैन इजीली गूगल आउट। एंड जो मेरा जो हिस्ट्री थर्ड जो चैप्टर है, वो थर्ड चैप्टर के बाद जो फोर्थ चैप्टर है
कि हमारे जो इंडिया में जितने जो बड़े स्कैम हुए पोस्ट इंडिपेंडेंट, फ्रॉम INS ट्रेजरी स्कैम टू जीप स्कैंडल, फ्रॉम मुद्रा स्कैम टू लेटेस्ट PNB स्कैम एंड सो मेनी स्कैम रिसेंटली, some perhaps Mr. Jain has been endorsed by President of India so that he can be prosecuted by our anti-corruption agencies like ED, CBI and etc. etc. So we have a long list of corruption scandals. And my fifth chapter is the structural corruption. We always talk about the newsy kind of corruption, some scandal which come in the newspaper coverage. So we start discussing about that. But we never think about how the structural corruption has just gripped our whole nation, whole society and whole public system. So when we talk about structural corruption, तो मैंने उसको भी स्ट्रक्चर किया कि 3 टायर और 4 पिलर करप्शन. अब 3 टायर मतलब कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडी, तो उनके अपने अलग अलग करप्शन के डायनेमिक्स हैं, अपने अपने स्ट्रक्चर है, अलग अलग हो रहा है, अलग अलग उनकी पूरी डायनेमिक्स बनी हुई है. और जो 4 पिलर है यानी कि लेजिस्लेचर, executive, judiciary and fourth which I belong, that is media. And you can say that a non-government organization, they are called a fifth state of democracy. They can be also covered under this. तो जब लेजिस्लेटर की करप्शन की बात आती है तो हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज के करप्शन की बात करते हैं, कैसे चंदे लिए जाते हैं, चंदे के बदले धंधे दिए जाते हैं, कैसे जो है बियॉन्ड प्रोपोर्शन जो है मनी खर्च किया जाता है. और इतनी डुअलिटी है और इतनी हिपोक्रेसी है कि वी अलाउ ए लोकसभा कैंडिडेट टू स्पेंड लीगली स्पेंड अप टू 95 लाख, लेकिन उसके 5 साल की आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो डेट अकाउंटेड टू बी ओनली 50 लाख, बट ही इज अलाउड टू स्पेंड 95 लाख. ये क्या है? आप 95 लाख खर्च करके 50 लाख रुपए के लिए गेन करते हैं, यानी कि हिडन एजेंडा इज देयर. That is why we have MP land scheme, so many discretionary power given to them, and so many things are there under black and under white. तो ये इस चीज को हमें करेक्ट करना होगा लीगली, एथिकली एंड थ्योरेटिकली. तो टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटिव करप्शन, so many examples are there. The corruption of MPs, MLAs, corporator, and all. We have a 3 tier of democracy. Under 3 tier, the 3 tier of rural panchayat, ग्राम पंचायत, and 3 tier of urban पंचायत. और फिर उसका एक अपना एक अलग जो है वो एक उसकी अपनी हायरार्की है. सेकंड, एग्जीक्यूटिव करप्शन. वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव करप्शन. तो वो शुरू होता है मिनिस्ट्रियल टॉप पोस्ट से, और मिनिस्ट्री के नीचे का जो पूरा हायरार्की है कि मिनिस्टर के बाद सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी से लेकर नीचे क्लर्क से लेकर के नीचे प्यून तक जो हर ऑफिस की हायरार्की होती है डिपार्टमेंट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज, तो उसके करप्शन की तो अनंत कथा है, उसके दैट इज इनफिनाइट. और फिर उसके बाद में जो तीसरा है जुडिशियरी. वी ऑलवेज फील फियरसम व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशियरी कि वो कोड ऑफ कंडक्ट न दे दे हमें, और हमें कहने का पूरा अधिकार नहीं होता. तो जुडिशियरी में भी एक अलग ऐसा करप्शन है कि लोअर लेवल की जुडिशियरी जो है दैट इज रिगार्डेड एज डेन ऑफ करप्शन. जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो तरह तरह के लोग जो एक आप कचहरी में बैठे होते हैं, सब जगह पैसे का बारा न्यारा होता है. मुझे तो लगता है ये उनकी आजीविका है या कोई इंडस्ट्री है या डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एक ऐसा खंभा है जिसके जरिए ह्यूमन राइट, जिसके जरिए जस्टिस, जिसके जरिए फ्रीडम, और जिसके जरिए हर तरीके की जो है लूपहोल्स है सिस्टम में वो दूर होता है. वो अपने आप में करप्शन का एक बहुत बड़ा अड्डा है. एंड 3 टायर जुडिशियरी है, एज वी ऑल नो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उनके अपने अलग अलग तौर तरीके हैं जो कि that can be elaborated in a different class. So talking about the structural corruption, I would like to mention the 4th pillar, media. मीडिया में भी कैसे न्यूज का ट्रेंड होता है, कोई न्यूज दबाने के लिए अलग और कोई दिखाने के लिए कोई अलग, कैसे कॉन्कॉक्टेड न्यूज, सेंसेशनल न्यूज, और किस तरीके से न्यूज के बदले, जैसे कि वोट के बदले नोट का मामला आता है तो न्यूज के बदले कैश देने की बात आती है. जो न्यूज है जे कॉस्ट, हर न्यूज पेपर, हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट होता है. और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट दे हायर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड दे पे सैलरी टू देम. व्हाई? फॉर देयर पब्लिसिटी पर्पस. इट मींस कि पब्लिसिटी हैज इट्स ओन कॉस्ट. दैट इज व्हाई रनिंग मीडिया आल्सो हैविंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट हैज टू बी managed. How?
through input and through cost and benefit analysis from input and from output balancing. So talking about the structural corruption, next I have gone to area wise corruption, sector wise corruption, profession wise corruption. If you talk about sector, then it means ki judiciary corruption, in judiciary, corruption in transportation, corruption in medical, corruption in health, corruption in education, corruption in मतलब कि so many things are there. You talk about department, ministry wise corruption I have mentioned कि किस मिनिस्ट्री में किस तरह के करप्शन का क्या तौर तरीका लोगों ने इजाद किया हुआ है और कैसे ये गवर्नेंस जो है अपने आप में बिजनेस है या एक मैनेजमेंट है या पब्लिक का वेलबींग है या अगर इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है. व्हाई? बिकॉज इलेक्शनियरिंग अंडर डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स a violence free regime change or the regime continuance. Anything happens under this non violent kind of electioneering democracy. But during medieval age और through ancient age पहले युद्ध लड़ा जाता था, सेनाएं रखी जाती थी और उसके बाद पॉलिटिकल regime चेंज होता था, एक व्यक्ति आक्रमण करके दूसरे को रिप्लेस कर देता था और फिर नया राज या नया हुकूमत या नया डायनेस्टी चलता था. लेकिन डेमोक्रेसी में नॉन वायलेंट तरीके से चुनाव लड़कर के रिगिंग चेंज कर दिया जाता है, भले उसके अपने कॉस्ट हो, कॉस्ट ऑफ इलेक्शनियरिंग हो, कॉस्ट ऑफ करप्शन हो, कॉस्ट ऑफ मेकिंग देयर ओन एसेट हो, उसके आधार पर पब्लिक मनी को वो करके साइफरिंग करके और तब जो ये रिगिंग चलता है, सरकार चलती है, समाज चलता है, देश चलता है, सूबा चलता है. तो हमारा काम है कि करप्शन फ्री अगर सिस्टम हम बनाए लाइक यूरोप एंड अमेरिका, तो हमारा पब्लिक वेलबींग ज्यादा होगा, पब्लिक गवर्नेंस ज्यादा होगा. तो टॉकिंग अबाउट सेक्टोरल करप्शन एंड प्रोफेशनल करप्शन, आई हैव मेंशन मोर देन 50 प्रोफेशन. कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें करप्शन की गाथा अपने तरीके से बुनी हुई नहीं है. वो डेटा आई हैव मेंशन्ड इन माय दैट चैप्टर. एंड द 6th चैप्टर दैट इज रिगार्डिंग एंटी करप्शन मेजर्स, कि करप्शन को दूर करने को लेकर के इस देश में क्या हुआ. तो अलग अलग इलेक्शन हमारे यहाँ 18 लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं, सैकड़ों स्टेट विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, अब तो 3 टायर गवर्नेंस के भी चुनाव हो रहे हैं. तो इन ऑल दिस 3 सेगमेंट वी मतलब कि मेक करप्शन एज एन इशू. एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को इसलिए हराता है कि वो साबित करता है कि अगला कैंडिडेट जो है बेईमान है, उसने करप्शन किया हुआ है, उसने साइफरिंग किया हुआ है, पब्लिक फंड का मिसयूज किया हुआ है. अब ये बात अलग है कि हम कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यदि चुनते हैं तो उसको हम इतना ओरा दें, इतना जगह दें सो डैट कि वो अपने को सर्वाइव कर सके, अपने कॉस्ट को निकाल सके और एक लिमिट तक पब्लिक लीडरशिप के आधार पर वो अपने परिवार और फैमिली को चला सके. बट व्हेन दिस लिमिट क्रॉसेस, it just becomes unlimited, then corruption germinates, then it hampers peoples at large, it hampers society. तो एंटी करप्शन मेजर्स को भी मैंने 4 पार्ट में लिया है कि लेजिस्लेटिव मेजर क्या है करप्शन का, एग्जीक्यूटिव मेजर क्या है करप्शन का, जुडिशियल मेजर क्या है करप्शन का, और मीडिया के जरिए करप्शन कैसे चेक होता है. ये बहुत बड़ा चैप्टर है. इट हैज टेकन अराउंड 180 पेज इन माय दिस बुक. एंड एंटी करप्शन मेजर में, लेजिस्लेटिव करप्शन में जब पार्लियामेंट में और स्टेट विधानसभा में जब कोई करप्शन के इशू पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, सवाल पूछे जाते हैं, सुओ मोटो लिया जाता है, कोई किसी तरीके का ध्यान आकर्षक प्रस्ताव लाया जाता है, तो वह भी एक तरह से लेजिस्लेटिव तरीका है करप्शन को तो काउंटर करप्शन. लेजिस्लेटिव मेजर्स में वो सारे एंटी करप्शन लॉज जो 1988 में आया, एंटी करप्शन एक्ट, उसके अलावा और भी कई सारे एक्ट आए. अभी फगटिव एक्ट आया, भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून, उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, उसके अलावा है कि बियॉन्ड एसेट जो है आपका मतलब कि आपके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आपकी कमाई से, आपके आमदनी से आपकी अगर एसेट ज्यादा है तो वो उसके लिए भी कानून बना हुआ है. बेनामी संपत्ति का कानून है. तो इस तरीके के 7-8 जो है मेजर कानून है. और उसी में ये आपका दिवालिया अपराध वाला जो कानून है वो भी एंटी कॉर्पोरेट को लेकर के है. तो जितने कानून पास में वो सब कानून का डिटेल. और अभी यू ऑल पीपल नो अबाउट द चेंज इन द इंडियन पेनल कोड, भारतीय न्याय संहिता जिसका नाम हो गया है,
एविडेंस एक्ट जो साक्ष्य कानून है, तो ये कानून भी अब नए रूप में आ गए हैं। कहीं ना कहीं ये भी अलग अलग तरीके से करप्शन को कैटर करते हैं। तो in that regard I have mentioned all the legislative anti corruption measure which had taken place in last 80 years in post independent India, and second is the executive way to counter corruption। जब एग्जीक्यूटिव वे है तो आप किसी भी दफ्तर में जाएं, आपको करप्शन की कोई शिकायत है तो आप अपने अधिकारी से, जब जनता दरबार हो तो आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इन्होंने ये रिश्वत की मांग की है, इन्होंने जो है भ्रष्टाचार का एक तरह से वो किया है, तो उसके खिलाफ कई बार सरकार की एजेंसियां, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंटर की हो, वो जाकर के उनको पूरा स्पाई करके और फिर उनको डिटेक्ट करती है। तो ये जो एंटी करप्शन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसको सेंटर में करीब 4 ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑल नो अबाउट सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके अपने मैंडेट हैं। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके अपने मैटर है कि वो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन को हैंडल करती है। सीबीआई ऑल सॉर्ट्स ऑफ करप्शन को लेती है। फिर तीसरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि पिछले 3, 4, 5 साल से काफी ज्यादा न्यूज में है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो एक बॉडी बनाई गई है, बट दैट एजेंसी एंड दैट लॉ इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर नंबर ऑफ एंटी करप्शन मेजर्स। उसके तहत अलग अलग काम होते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए। तो ये 3-4 है। उसके अलावा स्टेट में जाए तो आपको उनका जो है अपना लोकायुक्त है स्टेट के आधार पर, और उनके अपने भी मतलब कि हर स्टेट का अपना अलग है एंटी करप्शन एजेंसी। जैसे दिल्ली में जो है एंटी करप्शन ब्यूरो है, या इस तरीके के हर स्टेट का अपना अलग अलग बनाया गया है, तो वो इस तरीके से काम करते हैं। तो फिर जो है जो फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर जो है, थर्ड पिलर है, सॉरी एग्जीक्यूटिव के बाद अब जुडिशियरी। तो जुडिशियरी में भी करप्शन को लेकर के कई सारी शिकायतें हुई हैं, सुनवाई हुई है, उसमें चार्जशीट हुआ है, प्रोसिक्यूशन हुआ है, कन्विक्शन हुआ है, और उसका रेशियो बताया जाता है कि सीबीआई जो चार्जशीट करती है करीब 70% मामलों में कन्विक्शन होता है, यानी कि उनको सजा दी जाती है। ईडी के मामले में तो कहा जाता है कि और परसेंटेज उनका बढ़ गया है। तो इसके अलावा अलग अलग बॉडी करती है। कई बार जुडिशियरी खुद जो है, जैसे कि कॉमनवेल्थ स्कैम में जुडिशियरी ने खुद इनिशिएटिव लिया था, 2G स्कैम में खुद इनिशिएटिव लिया था। तो जुडिशियरी अपने अपने तरीके से करप्शन को, मेजर्स को दूर करती है। और चौथा है मीडिया। आप अगर न्यूज़पेपर को लें या टीवी मीडिया को लें, या आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया हैज बिकम ए सिटीजन जर्नलिज्म, कि हर व्यक्ति के पास अपना ट्विटर हैंडल है और फेसबुक अकाउंट है। आप कोई भी करप्शन को उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। पहले न्यूज़पेपर का दौर था तो आप लेटर टू एडिटर लिखते थे। टेलीविजन का दौर आया तो कोई सेंसेशनल न्यूज करप्शन का बनता था तो उसकी पूरी स्टोरी होती थी। तो मीडिया का मुझे लगता है कि इसका इंस्टेंट यूज है, जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है या फास्ट फूड होता है, तो कोर्ट में जाएंगे तो लंबी प्रक्रिया चलेगी, ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो सुनेगा नहीं भी सुनेगा, लेजिस्लेचर के पास जाएंगे तो सालों भर जो है संसद और विधानसभा की बैठक नहीं होती। मीडिया में है कि 1 मिनट में आप जाएंगे, 1 मिनट में खबर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मुझे लगता है मीडिया हैज अ मोर बिगर रोल इन काउंटरिंग करप्शन, इन हाईलाइटिंग करप्शन, इन डिटेक्टिंग करप्शन। लेकिन इन चारों ऑर्गन के अपने अपने स्ट्रक्चर है, अपने अपने तरीके हैं। फिर मैंने बताया कि 3 टायर सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी के करप्शन की इंटेंसिटी, क्वांटिटी और डिग्री सबकी अपने अपने हिसाब से अलग अलग है। फिर मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है 7वां, कि इंटरनेशनल कन्वेंशन जो करप्शन पर हुआ है, यूएन करप्शन एंटी करप्शन कन्वेंशन 2001 में हुआ, जिसका इंडिया सिग्नेटरी है। उसके बाद बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां आ गई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लेकर के अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग महादेश में एंटी करप्शन की कई सारी रेटिंग एजेंसी बनी हुई है। और उसके बाद में मेरा 8वां चैप्टर है कि करप्शन इन द मास मूवमेंट, माने करप्शन पर कितने मास मूवमेंट हुए, कितने लोकसभा चुनाव में इशू बना, और कौन कौन से ऐसे आंदोलन हुए जो कि मेजरली मोस्टली करप्शन पर सेंटर्ड थे। एंड दैट वाज द नौ निर्माण आंदोलन, गुजरात नौ निर्माण आंदोलन, जो कि हॉस्टल में मेज के खाने में भ्रष्टाचार हुआ और वो एक बड़ा आंदोलन बना। और गुजरात निर्माण आंदोलन क्रिएटेड अनदर आंदोलन दैट वाज कॉल्ड 74 मूवमेंट इन बिहार, और वो उसमें प्राइस राइज, इन्फ्लेशन एंड करप्शन, these were the 3 main issue of that mass movement, and that was a historical mass movement.
74 से रिजीम चेंज किया, उसमें डेमोक्रेसी के हनन को लेकर के भी लड़ाई हुई। तो एनीवे दिस वाज द मूवमेंट। एंड थर्ड मास मूवमेंट वाज द बोफोर्स, एंटी बोफोर्स ड्यूरिंग 1989। इट आल्सो ब्रॉट रिजीम चेंज, दिस करप्शन इशू। एंड उसके बाद जो एक नॉन पॉलिटिकल टाइप का जो आंदोलन हुआ, दैट वाज राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का जो आंदोलन जो कि अरुणा रॉय ने राजस्थान में जो किया, फिर उसके बाद आरटीआई एक्ट बना 2005 में, और माना जाता है कि उसका भी करप्शन को मतलब कि हटाने में वो एक अलग चीज है कि आरटीआई कितना इफेक्टिव हुआ और सबसे बेस्ट में क्या है, वो मैं अपनी बात बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन तरीका ये है कि जो मास मूवमेंट था और फिर वो नेक्स्ट मास मूवमेंट था, वो 2011 का लोकपाल आंदोलन और एंटी ब्लैक मनी आंदोलन प्रोपाउंडेड बाय रामदेव, एंड अर्लियर आंदोलन वाज प्रोपाउंडेड बाय योर अन्ना हजारे। तो ये 4-5 मास मूवमेंट है। बाकी उसका रिजल्ट क्या आया, इट इज बिफोर यू ऑल। और फिर उसके बाद में जो बड़े स्टॉलवर्ट हुए करप्शन को लेकर के, लोहिया, जेपी, अन्ना हजारे, और उसके अलावा अलग अलग बहुत सारे मॉडल पॉलिटिशियन आए, मॉडल ब्यूरोक्रेट आए, मॉडल जर्नलिस्ट आए, मॉडल जजेज एंड जूरी पर्सन आए, जिन्होंने करप्शन पर एक क्रूसेडर की भूमिका निभाई, क्रूसेडर ऑफ करप्शन कहलाए। और फिर जो मेरा 9th चैप्टर है वो है पब्लिक परसेप्शन ऑफ करप्शन, कि पब्लिक क्या सोचती है। तो पब्लिक की मैंने 5 कैटेगरी बनाई। एक कॉमन सिटीजन कंप्राइज्ड ऑफ ऑल पीपल, सेकंड ऑल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें 3 टायर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडी। उनका क्वेश्चन उनके लिए अलग फ्रेम हुआ, कॉमन सिटीजन के लिए अलग फ्रेम हुआ। और तीसरा था ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके हिसाब से क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया। चौथा था ऑल बिजनेस क्लास पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक करप्शन, कॉर्पोरेट करप्शन, उसमें बिजनेस पीपल इन्वॉल्व होते हैं, उसमें तरह तरह के करप्शन है। ये सारे कैटेगरी के करप्शन अलग अलग है, अलग अलग तरीके के करप्शन है, जो कि मेरे बुक में भी है और मेरे प्रेजेंटेशन में भी आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। एंड द 5th क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनजीओ पीपल, मीडिया पीपल, टीचर्स, लॉयर, कि दे आर द फ्री थिंकर्स पीपल। तो व्हाट दे थिंक ऑन करप्शन एंड हाउ दे वांट टू रिपेल करप्शन, उसको लेकर के क्वेश्चन आया था। तो व्हेन आई डिलीवर्ड लेक्चर लास्ट ईयर इन योर क्लासरूम, so I was mostly told to show all the result of that questionnaire, the 5 category questionnaire. So these are the 9 chapter of my books, and the second book, that is the follow-up book, a dialogue on system change and initiative to make a new India. It's a comprised of both objective and subjective matter. यानी कि मैंने कम से कम सैकड़ों तरह के रिफॉर्म की बात की है और बहुत सारे रिफॉर्म इस देश में हुए हैं। I am telling you, I am not a politician कि मैं कहूंगा कि केवल डार्क है, नहीं, गलत बात। 75-80 साल में इस देश में so many changes had taken place in a different era and different time under different regime through different policy, different program, different law, different rule, etc. etc. And उसके अलावा कितने तरीके के रिफॉर्म और रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि you all people want to become a public governor, public policy maker, politician. आप एक डेमोक्रेसी के अंग बनना चाहते हैं, आप देश को एक टॉर्च बियरर बनना चाहते हैं, तो आपको इस चीज के बारे में एक एक्यूरेट जजमेंट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि वेयर थिंग्स आर गुड एंड वेयर थिंग्स आर बैड एंड वेयर थिंग्स हैव बिकम वर्स। ये कैटेगरी होनी जरूरी है। हम सबको एक तराजू पे तोलेंगे तो इट विल बिकम ए न्यूसेंस। ये एक तरह से मिस इन्फॉर्म होगा देश को, सिस्टम को, समाज को, और कुल मिलाकर के पूरी इंटेलिजेंसिया को और पूरी जो है मनीषा को। तो मेरा कहना यह है कि जो ए डायलॉग ऑन सिस्टम चेंज जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। तो आई टोल्ड यू कि जितने नैरेटिव हैं हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में, पब्लिक गवर्नेंस में, उस नैरेटिव को नए सिरे से डिफाइन करना और ये बताना कि कैसे ये देश के हित में है और कैसे ये देश के हित में नहीं है, कैसे ये देश के ज्यादा हित में है, इसको लॉजिकली समझाने का काम मैं डायलॉग ऑन सिस्टम चेंज एंड इनिशिएटिव टू मेक ए न्यू इंडिया में किया है। तो मैंने इसको 6 कैटेगरी में इसे भी मैंने बांटा है। पहला है कि एथनिसिटी एंड नेशनैलिटी। आज देश में एथनिसिटी और नेशनैलिटी को भी बड़ा ही डिबेट होता है
कि ये हिंदू है तो ये मुसलमान है तो ये सनातन है तो ये इंक्लूसिव है तो ये आधुनिक है तो ये क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके के जो नैरेटिव दिए जाते हैं, तो इसको मैंने एकदम बिल्कुल एक एथनिसिटी, नेशनैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इन तीनों को लेकर के एक सही पर्सपेक्टिव अपने करीब 5-6 लेखों के जरिए हमने इसमें किताब में दिया है। और सेकंड है पॉलिटिकल विजन एंड रिफॉर्म प्लान, कि हमारे यहाँ जो मल्टी पार्टी कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का जो सफर है, अब तक की जो जर्नी है, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ रही हैं, क्या क्या कमियां रही हैं, कैसे वो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंक्लूसिव रही है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की पार्टिसिपेटरी उसमें मतलब वो बन करके रहा है, दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड ट्राइड टू रिवील। एंड उसमें मैंने कई सारे सजेशन दिए हैं, जो कल का जो सेशन है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, कि हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में क्या क्या करना है। और तीसरा है इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड विजन प्लान, दैट इज द की टू ऑल रिफॉर्म। क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म जब तक नहीं आएगा, देश के हर व्यक्ति को इकोनॉमिक इंपावरमेंट नहीं होगा, उनका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा, उनका फंडामेंटल नीड्स नहीं बढ़ेगा, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन नहीं होगा, उनका न्यूट्रिशन नहीं होगा, उनका देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड विजन प्लान में, चूंकि मैं बेसिकली इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ, मीडिया का आदमी हूँ, तो मैंने उसमें कम से कम करीब करीब 1 दर्जन आर्टिकल अलग अलग सेगमेंट को लेते हुए, उसमें एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, सर्विसेज भी है, अलग अलग जो सेक्टर है इकोनॉमी को, दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। और चौथा है सोशल विजन एंड रिफॉर्म प्लान, कि समाज में विमेन का इशू है, यूथ का इशू है, अलग अलग सोशल इविल्स हैं, तरह तरह की चीजें हैं जो समाज में जो प्रॉब्लम जनरेट हुआ है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट सोशल रिफॉर्म, तो उसमें क्या क्या सुधार लाया जा सकता है। और पांचवा है एडमिनिस्ट्रेटिव विजन एंड रिफॉर्म प्लान, क्योंकि पब्लिक सिस्टम है ना, उसका जो सबसे कोर पार्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर ये पूरी गैलेक्सी, अगर ये सिस्टम है, तो सूरज और चांद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में दिखते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे तारे हैं ना, वो समझ जाइए वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वही सब जगह उनको सबको कवर करते हैं, और 24/7 जो है पब्लिक को डील करते हैं। दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर मी एज एन एकेडमिशियन, एज एन ऑथर, एज ए रिफॉर्म एक्टिविस्ट। आई कैन टेल यू कि ब्यूरोक्रेसी अगर इस देश की सुधर जाए, 3 करोड़ जो ब्यूरोक्रेसी के मेंबर हैं इन ऑल 3 टायर, सेंट्रल, स्टेट एंड 3rd टायर, और उसके अलावा पूरा जो ऑर्गेनाइज्ड क्लास है और 40 करोड़ का जो मिडिल क्लास है, अगर ये पूरा अवेकन हो जाए और पूरा सही हो जाए, तो हमारा भी देश जो है 25-50 साल में यूएस और अमेरिका की तरह एक अवेकेंट सोसाइटी हो सकता है, मतलब कि विदाउट चेंजिंग द कोर एंड बेसिक इंडियनाइज्ड कल्चर ऑफ आवर कंट्री। तो वो चीज बनाते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव विजन और रिफॉर्म प्लान में मैंने कई सुधारों की वकालत की है, कई सारे सुधारों की बात की है, जो कि मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा। और लास्ट है कि ग्लोरी ऑफ रिपब्लिक, हमारा जो रिपब्लिक जो 75 साल का, अभी कॉन्स्टिट्यूशन का हमने 76 साल मनाया, आज़ादी का हम करीब करीब अमृत काल 80 साल मनाने जा रहे हैं, मना चुके, बल्कि अब हम जा रहे हैं 100 साल की तरफ, विकसित भारत की तरफ। तो अब तक इस देश में कितनी अच्छी चीजें घटित हुई, कौन मॉडल पॉलिटिशियन हुआ, मॉडल ब्यूरोक्रेट हुआ, जिसने कि अपने सुधारों से समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया, जिसमें मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बड़ा मानता हूँ। कभी बैंक नेशनलाइजेशन बना था, कभी पोलियो का उन्मूलन का अभियान चलाया गया, कभी एन विट्ठल जैसे जो है बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हुए जिन्होंने कि आईटी का यूज करना शुरू किया, टीएन शेषन हुए जिन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म लाया, जैसे कि आपके व्हाइट रेवोल्यूशन लाने वाले वर्गीज कुरियन थे, स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले थे, मीडिया में एक बड़ी क्रांति लाने वाले कवि प्रणव रॉय थे। तो इस तरीके से जो अलग अलग चेंजेस देश में लाया गया, अब जैसे कि अभी आईटी जो रेवोल्यूशन आया, उसने तो कई चीजें गेम चेंजर ला दिया, कि आज आप दिल्ली में कभी आप स्टेशन से उतरते थे तो आपको बार्गेन करना पड़ता था कि कितना पैसा लोगे, 1000 लोगे कि 500 लोगे टैक्सी का। ओला एंड उबेर हैज जस्ट चेंज द होल स्टेटस को, सारी चीजें चेंजेस कर दी है। आपके आईटी ने, ऐप ने जीवन को कितना आसान बना दिया है। आपको डीबीटी ट्रांसफर ने
कितने सारे लीकेजेस को दूर कर दिया है। लेकिन जैसे कि मेरा जो सेंट्रल सॉल्यूशन है कि टेक्नोलॉजी हैज ए ग्रेटेस्ट रोल इन रिपेयरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ करप्शन, मैल गवर्नेंस एंड ऑल काइंड ऑफ लीकेजेस एंड लूपहोल्स। तो टेक्नोलॉजी भी फुल प्रूफ होना चाहिए। अगर आपको कोई सरकार वेबसाइट देती है, कोई ऐप देती है, पता चलता है कि लास्ट टाइम में भी आप स्ट्रगल करते रहते हैं, फुल प्रूफ नहीं होता है। तो until unless any technology is full proof, we cannot claim technology driven governance. एक एग्जांपल मैं अभी ही दे देता हूं, कहीं मैं बाद में भूल जाऊं, क्योंकि so many things I have to explain before you, कि दिल्ली मेट्रो या कोई भी मेट्रो, पुणे में भी मेट्रो है, आप मेट्रो में जाते हैं तो वहां पर कोई विदाउट टिकट नहीं जा सकता, और उसके अंदर कोई करप्ट टीटी भी नहीं बैठा होता कि वो डिस्क्रिशनरी पावर का दुरुपयोग करके आपसे पैसे ले और आपको खर्च करे। टेक्नोलॉजी है इनेबल ऑल दिस थिंग्स, कॉस्ट भी बचा है, प्रोबिटी भी बढ़ी है, और कोई भी वेंचर सेल्फ सस्टेनेबल हो सकता है। Nowadays our politics is being run by free which kind of politics? अभी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली का चुनाव हुआ, सारे पॉलिटिकल पार्टी ने रेवड़ियों की झड़ी लगा दी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को मेलाइन किया गया कि वो फ्री विच की पॉलिटिक्स करते हैं। आई ऑल्सो से दैट इज टोटली रॉन्ग, इट रूइंस आवर इकोनॉमी एंड इट डजंट provide benefit to the needy people. That is why they just resisted the old age pension scheme, but because that was not politically lucrative in comparison to free bijli and free pani. That is why they didn't think about that old age pension. That was also one of the major point of governance, major point of social welfare. So I will explain you in later time what should be the basic criteria of governance, where government has to intervene, where government has to interfere, and what thing government has to provide and what thing can be left to the mercy of the private sector or to the mercy of the market sector. So these are the all major thing of my all these three books, which was very necessary to tell you because you all are a student of governance, and I think these are the things which enhances your मतलब कि आउटलुक, योर विजडम, योर थिंकिंग, योर ऑब्जर्वेशन, बिकॉज आई एम नॉट योर कोर्स टीचर, दे विल गिव लेक्चर एज पर योर सिलेबस, बट आई हैव जस्ट कम टू एक्सपेंड द होराइजन ऑफ योर थिंकिंग, जस्ट नर्चर योर आउटलुक, हाउ यू थिंक अबाउट दिस गवर्नेंस, हाउ यू थिंक अबाउट दिस सिस्टम, हाउ यू थिंक अबाउट दिस पॉलिटी, हाउ यू थिंक अबाउट दिस society and public governance and etc. So as you told you, there are two parts. One is the corruption and governance, and second is the contesting election and campaigning. I think कि करीब half an hour अभी हो गया, कितना टाइम अभी हुआ है आपको? जी 45 minutes. So I am just coming on this PPT presentation. As I told you, corruption, good governance and system change. ये ऐसा हेडिंग इसीलिए रखा गया कि करप्शन, गुड गवर्नेंस एंड सिस्टम चेंज आर हैविंग सप्लीमेंट्री इफेक्ट्स ओवर देम, यानी कि करप्शन है इसलिए गुड गवर्नेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है इसलिए करप्शन है, एंड गुड गवर्नेंस नहीं है इसलिए कि हम सिस्टम में टाइम टू टाइम रिशफल नहीं करते हैं। आप स्टूडेंट को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देयर इज वन टर्म दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल करेक्टनेस। आप में से कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस बता सकते हैं हमें? पॉलिटिकल, व्हाट इज कॉल्ड पॉलिटिकल करेक्टनेस? आप लोग बता सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में लड़ने के लिए, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है, वो वही काम करेगी जो उनकी पॉलिटिक्स और उनके वोट को फायदा दे। यानी कि उनको प्योर देखना है कि जनता को हम सीधे मंत्री देंगे, महिला, एक गरीब महिला को देना कोई गलत बात नहीं है। I am enormous supporter of providing social security, यानी कि पेंशन टू एवरीबॉडी। मेरा एक सूत्र है कि एबल को रोजगार, यानी कि आप एबल हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं आपको मिलना चाहिए। एंड डिसेबल को ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेंशन, मतलब कि अगर आप वृद्ध हैं तो आपको वृद्धा पेंशन मिलना आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए, और सब्सटेंशियल अमाउंट।
आज गवर्नमेंट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग सरकारी पेंशन जो मोटा माल मिलता था उसको लेकर के आंदोलन करते हैं। उनको संतुष्टि नहीं है कि एक उनको पीएफ के जरिए या एनपीएस के जरिए इतना पैसा मिले, जबकि देश के 80% वृद्ध लोगों को 400 रुपये भी मंथली पेंशन नहीं मिलता। मैं बिहार से हूँ, बिहार में तो 400 रुपये मिलता है। कुछ राज्यों ने 1000, कहीं 1500, कहीं 2000 शुरू किया हुआ है। तो डिसेबल को पेंशन, उसमें विडो है, विडोअर है, एजेड है, हैंडीकैप्ड है, बीमार है, मेंटली चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज है, तो उसको हर हाल में एक ऐसा पॉलिसी होना चाहिए कि कोई छूट ना पाए। वो नेशनल, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, वन नेशन वन पेंशन की भी बात होनी चाहिए। डिपेंडेंट को एजुकेशन, यानी बच्चे हैं तो उनको एजुकेशन और हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, पोषाहार, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य, और बिजनेस और कॉर्पोरेट को इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, अस्पताल, ये वो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है कि सड़क, रेलवे, हवाई जहाज, पोर्ट, टेलीकॉम, बिजली, ये सारी चीजें। तभी हमारा बिजनेस जर्मिनेट होगा। और जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, बिजली दोनों पैदा कर रहे हैं, तब तो प्राइवेट सेक्टर तो लूट लेगा, सरकारी सेक्टर तो रियायत दर पे देगा। तो देयर मस्ट बी रेगुलेटर। रेगुलेटर तय करेगा कि प्राइवेट सेक्टर कितना रेट लेगा। जैसे कि आप फोन में रेगुलेटर तय करता है तो जियो भी उतना ही लेता है जितना कि एयरटेल लेता है, जितना कि बीएसएनएल लेता है। अब आपस में अलग अलग तरीके में थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन करते हैं, लेकिन रेगुलेटर है मेजर रोल टीआरएआई का। तो ये टीआरएआई का काम है, सारे रेगुलेटरी बॉडी का काम है कि वो चीजें ये तय करें कि क्या करना है। उसी तरीके से सरकारों का रोल बस यहीं पर है कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जो है छोड़ देना है। और सरकारों के लिए कि, और आपदा का जो होता है कि कैलेमिटी, आपदा काल में 100% गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। 100% हर हाल में सरकार को चीजों को लेना चाहिए। और जो व्यक्ति बिल्कुल गरीब है उसको इंपावर करें अलग अलग तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ एक बराबर शिक्षा नीति नहीं है, स्वास्थ्य नीति नहीं है, एक बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीति नहीं है। तो पॉलिटिकल करेक्टनेस में हमने ये तय किया कि नहीं, हम पुणे में ही प्लांट लगाएंगे तो पुणे का सांसद कहेगा तभी हमको वोट मिलेगा। दैट इज द पॉलिटिकल करेक्टनेस थी। लेकिन अगर नेशनल सर्वे होगा कि नहीं यहाँ पर इसकी जरूरत है, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, तो दैट वुड बी नॉट कॉल्ड एज ए पॉलिटिकल करेक्टनेस, दैट वुड बी रादर कॉल्ड एज नेशनल करेक्टनेस। तो ये है पॉलिटिकल करेक्टनेस। तो मैंने यही कहा कि विदाउट चेकिंग करप्शन वी कैनॉट डू गुड गवर्नेंस एंड वाइस वर्सा, विदाउट चेकिंग आवर सिस्टम वी कैनॉट चेक करप्शन एंड डूइंग गवर्नेंस। ये तो इजी है। वी जैसे कि आज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी ऑल आर पार्ट ऑफ सागा ऑफ करप्शन एंड इन अ वे वी ऑल आर सफरर ऑफ दिस सर्कल। मोटे तौर पे मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि कौन सा 8 सेंट्रल पॉइंट है करप्शन दूर करने का। क्लियर कट, सिंपल एंड पिन पॉइंटेड एंटी करप्शन लॉ। ऐसा लॉ नहीं हो कि वकील हमें करना पड़े और उसकी लैंग्वेज हमें समझ में ना आए, नहीं तो पब्लिक में अवेकनिंग और अवेयरनेस नहीं होगा। सेकंड है कंप्लीट पॉलिसी ड्रिवन सिस्टम। हर चीज कोई भी किसी के मनमर्जी और मनमौजी तरीके से नहीं होना चाहिए, एक पॉलिसी एक होना चाहिए एंड दैट शुड बी अल्टरेबल आल्सो। अब मान लीजिए कानून बन गया, उसका ऑफिसर आया, नहीं ये कानून हम नहीं करेंगे। अरे भैया अपना भी विवेक का इस्तेमाल करो, अपना भी दिमाग लगाओ, अपना भी संवेदनशीलता दिखाओ कि जनता को क्या जरूरत है, थोड़ा आउट ऑफ वे जाकर के हम चीजों को डिलीवर कर सकें। Having a robust kind of institution building, हर इंस्टीट्यूशन चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसके इंस्टीट्यूशन का पूरा कल्ट और एनवायरनमेंट इतना अच्छा होना चाहिए जिससे कि वो चीज वहां पर हर चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखे और वो चीजें साफ साफ सुनाई पड़े, हर चीजों को लोगों को महसूस हो कि हमारे लिए वो सिस्टम वो चीज काम कर रहा है। अगर आप लोगों के बीच में कोई क्वेश्चन हो, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, मुझे तो लगता है कि जो एक स्टैंडर्ड फ्रेम है और जो चीज आपको हमें बताना चाहिए वो चीज मैं बता रहा हूँ मैं अपने वर्क के हिसाब से। अदरवाइज आप लोग को कोई भी क्वेरी हो बेहिचक पूछिए, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह के लाइफ से गुजर करके यहाँ तक आया हूँ और आज भी जमीन पर ही सारी चीजों को देखता हूँ। फिर जो चौथा है मैसिव इंडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी इन द सिस्टम। जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने कैसे गेम चेंजर लाया कि रिजर्वेशन आज 30 साल पहले आया
कंप्यूटर रिजर्वेशन, तो रेल रिजर्वेशन के सारे करप्शन दूर हो गए। अलग अलग तरीके में जहाँ जहाँ मैंने टेक्नोलॉजी यूज किया, ई गवर्नेंस के जरिए या तमाम जगह के जरिए, तो करप्शन दूर हुआ है। क्रिएटिंग फैंटास्टिक वर्क एनवायरनमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन ऑल पब्लिक ऑफिस। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी नुसेंस नहीं होना चाहिए। अगर हमने कॉस्ट लगाया है तो उसका रिटर्न आना चाहिए। जैसे मारुति कंपनी अपने एक एक एम्प्लॉई पर कितना कॉस्ट आता है, चाहे कैंटीन में हो, चाहे फर्नीचर यूज में हो, बिजली में हो, उनके वेतन में हो, भत्ते में हो, वो कॉस्ट कैलकुलेट करती है और फिर उनका जो आउटपुट आता है वो पर एम्प्लॉय उसको रेट करते हैं। दैट इज वाई कंपनी इज ऑलवेज सस्टेनेबल। वो हमेशा बनती है, वो लॉकआउट नहीं होता, बंद नहीं होता। मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि गवर्नमेंट में ह्यूज सब्सिडी से सिस्टम चलता है और प्राइवेट में कुछ ज़्यादा ही कम खर्च पे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लिया जाता है। दोनों में बैलेंस होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर भी सरकार की तरह सोशल मतलब कि वेलफेयर का काम करे और सरकारी भी जो है प्राइवेट की तरह कॉस्ट कंसेशनस जोन में कोई भी चीज़ फालतू खर्चा ना हो, कोई चीज़ बेकार का मैन पावर ना हो। अब तो सरकार में ये हो गया है कि जहाँ पर 4 मैन पावर की जरूरत है, नई बहाली नहीं होने से 2 आदमी ही काम कर रहे हैं। और कभी ऐसा होता था जहाँ 4 की जरूरत थी, 14 लोग बहाल होते थे। मैं आईएमसी में जहाँ से पढ़ा था, टोटल 90 स्टूडेंट होते थे और उस आईएमसी में टोटल नंबर ऑफ स्टाफ 225 थे। ये था व्हाइट एलिफेंट और ये था गवर्नमेंट सेक्टर का नज़ारा। आपका जो एमआईटी है, मुझे लगता है कि यह भी एक रोबस्ट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन है। हर चीज को ध्यान में रख करके ये चीजें यहाँ पर चलती हैं और एक संतुलन लाने का प्रयास किया गया। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड रिगार्डिंग दिस, आई डोंट नो मतलब कि मोर अबाउट दिस, बट व्हाट आई हैव फेल्ट दैट आई एम टेलिंग यू। द नेक्स्ट है ए प्रोफाउंड पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस इज क्यू टू ऑल प्रॉब्लम। अगर आप हर जगह जागरूक होंगे, अपनी बात को कहेंगे, सहेंगे नहीं और तरीके से उठाएंगे। हालांकि कुछ इतना ही ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस होता है कि कुछ लोग ज्यादा नेतागिरी करने लगते हैं और अपने नेतागिरी चमकाने के चक्कर में वो चीजों को बार बार बियॉन्ड प्रोपोर्शनल नॉइज क्रिएट करते हैं, पेंडेमोनियम क्रिएट करते हैं। हार्ड पनिशमेंट फॉर द एनफोर्समेंट एजेंसी इफ दे फाउंड इंडल्ज इन ब्लैकमेलिंग। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस। ये जितनी वो एजेंसी हैं जिसको बोलते हैं कि इन्फोर्समेंट एजेंसी, जितने एंटी करप्शन, जैसे यू टॉक अबाउट पुलिस, यू टॉक अबाउट एनी मतलब कि सीबीआई, ईडी और वगैरह वगैरह, वो लोग कई जगह ब्लैकमेलिंग करते पाए गए। वो कई बार छापा मारते हैं। मुझे सुनने में आता है कि कई बार वो कह देते हैं कि इतना संपत्ति हम अलग रख लेंगे, तुम्हारा कम दिखा देंगे जितना बरामद हुआ, और फिर वो करप्शन करते हैं। मेरा मानना है ये नुसेंस क्रिएट करता है सिस्टम में, उनके लिए ज्यादा कड़ा सजा होना चाहिए। अगर एक कहा जाता है रक्षक यदि भक्षक बन जाए तब तो फिर भगवान ही मालिक है। तो वही हाल करप्शन को लेकर के। स्प्रेड ऑफ एन एथिकल रेवोल्यूशन इन द कंट्री। देश में एक नैतिक क्रांति की जरूरत है। फिर जो है एजेंडा ऑफ रिफॉर्म फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, जिसको मैं कल डिस्कस करूंगा। टिकट सेलिंग है, पार्टी, सारे पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के कवर के अंदर नहीं है। हाँ, इसके पहले जो आपने स्लाइड दिखाया उसमें 8 पॉइंटर्स हैं, तो सर वो मैक्सिमम सभी इम्प्लीमेंट करने के लिए तो अथॉरिटीज पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड रहेगी, तो वो अपने ही अगेंस्ट क्यों कुछ चीज इम्प्लीमेंट करेगी? हाँ, ये बात आपने यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दैट इज व्हाई ऑपोजिशन एंड दैट इज व्हाई मीडिया हैज ऑलवेज रोल। मतलब कि चुनाव के बाद भी हमारी डेमोक्रेसी चले, ये तब होगा जब मीडिया अपने पूरे रोबोस्ट भूमिका में होगा, जुडिशियरी होगी, अपोजिशन पार्टीज होंगी, सिविल सोसाइटी होंगी। और नहीं तो देखिए, डेमोक्रेसी में कोई बहुत बड़े ऊपर से अवतार होकर के लोग नहीं आते हैं। उनको चेक एंड बैलेंस, देखिए चेक एंड बैलेंस जो है ना डेमोक्रेसी का सबसे मूल फॉर्म है कि उनको चेक करने वाली बॉडी बैठी है। संसद में सवाल होगा, विधानसभा में सवाल होगा, मीडिया में सवाल होगा, लोग चर्चा करेंगे, पब्लिक ओपिनियन बनेगा। लेकिन एक अथॉरिटेरियन रिजीम हमेशा इन चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करती है बाय यूजिंग लीगल एंड इलीगल पावर। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, मैंने एक पॉइंट इसमें और जोड़ा है कि देयर शुड बी प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट ऑफ करप्ट वोटर आल्सो अलोंग विद द कंटेस्टेंट। आमतौर पे जो ब्राइब करते हैं कैंडिडेट अपने वोटर को, उनको हम लोग पनिश करते हैं। उन पर जो है इलेक्शन कमीशन जो है नोटिस लेता है, छापा मार के बरामद किया जाता है। आप सुनते हैं हर चुनाव में इतना करोड़ रुपया बरामद हुआ, इतना करोड़ बरामद हुआ।
I am suggesting penalizing corrupt voter also. Why? मतलब कि checking them their casting their vote. कि अगर आपने पैसा लिया तो आपको वोट देने से मना कर दिया जाएगा और वोटर लिस्ट में उसके नाम पर क्रॉस लगा दिया जाएगा। ये करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकल करेक्टनेस है कि हम पब्लिक के करप्शन पर कभी नहीं बोलते। हम हमेशा जो है उनके करप्शन पर बोलते हैं जिसमें कि कंपटीशन होता है। लेकिन अगर हम रियल प्यूरिफाई करना चाहते हैं अपनी पॉलिटिक्स को, तो हमें इस पर भी हमें बोलना पड़ेगा। एक बात और है कि करप्शन दो तरह के होते हैं। एक तो ये कि मेरे पास जो है कोई अपना मीन्स नहीं है, मेरे पास लाइवलीहुड की कोई तरीका नहीं है, तो मैं बाएं दाएं इधर उधर करके थ्रू करप्ट मीन्स आई विल ट्राई टू अवेल माई लाइवलीहुड। और एक होता है कि मेरे पास सारे वेल्थ एंड पावर है, चैम्बर है, वेतन है, सैलरी है, फंड है, फलाना है, ठिकाना है, और सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। मोर एंड मोर, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने ये कहा है कि पहले उनके करप्शन को हम दूर कर दें। बस अभी ले रहा हूँ क्वेश्चन आपका कि कम से कम जिनको सैलरी नहीं मिलती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड टायर रिप्रेजेंटेटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ग्राम प्रधान एंड अदर मेयर एंड ऑल corporator and etc. What I know, they have not been given a very appropriate and adequate salary amount. उनको अच्छे वेतन सैलरी नहीं दी जाती है, और फिर वो फंड की साइफरिंग करते हैं। मैं कहता हूँ उनको जेल में डालो, फांसी में लटकाओ, लेकिन एक ग्राम प्रधान के रोज के जो खर्चे हैं मैं जानता हूँ, व्हाट आई नो माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कम से कम एक दिन में उनका खर्चा 2000 रुपये का है, लेकिन दे गेट मीगर सैलरी ऑफ 5000 रुपये। बट दे हैव एनॉर्मस प्रोविजन ऑफ फंड, वो 1 करोड़ एनुअल है। अगर वो 20% की भी साइफरिंग करता है बाई गिव एंड टेक, तो 20 लाख रुपए उससे बनाना चाहेगा। अगर हम सिस्टम को क्लीन करना चाहते हैं तो ये प्रोविजन हमें लाना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग सेम टाइप ऑफ एक्जीक्यूटिव पावर टू द फर्स्ट एंड सेकंड टायर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर एक पैराडॉक्स है कि थर्ड टायर को हम सैलरी नहीं देते, लेकिन उसको काफी पावर दे दिए हैं, काफी अब थर्ड टायर में पैसे अब जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और उसका वो मिसयूज करते हैं। लेकिन फर्स्ट टायर यानी एमपी और सेकंड टायर यानी एमएलए, एमपी एमएलए को सैलरी, सुविधा, हवाई जहाज, दिस दैट तो मिलता है ठीक ठाक, बल्कि कम ही मिलता है। मैं तो कहूँगा सैलरी और दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको एमपी लोकल एरिया फंड और लोकल एरिया फंड एमएलए को, एमपी को 5 करोड़ और एमएलए को 3 करोड़, आम आदमी पार्टी ने 5 करोड़ अपने एमएलए को भी कर दिया था। वो हर साल का फंड दिया जाता है उनको केवल खुश करने के लिए। मैं तो कहता हूं कि आप अपने एरिया के पूरे फंड के मालिक बनो, लेकिन ये मत मानो कि आपका फंड है। आपको मॉनिटरिंग करना है और आपको सही जगह खर्च करवाना है, लेकिन ये फंड स्पेशली उनके लिए दिया गया सो दैट दे कैन मेक मनी थ्रू इलीगल मीन्स। तो मेरा ये कहना है कि उनको एग्जीक्यूटिव पावर दीजिए। देखिए, आप एक एमपी है, मान लीजिए पुणे का एमपी है, और इनको मिनिस्टर आपने बना दिया, he gets enormous political power, एग्जीक्यूटिव पावर, सॉरी, उसको एग्जीक्यूटिव पावर पूरे अपने विभाग का मालिक। लेकिन वही एमपी अगर मंत्री नहीं बनाया जाता है, केवल सांसद बन के रहता है, he doesn't have power। तो मेरा ये कहना है कि आप उसको पावर न मत दीजिए, लेकिन कम से कम पुणे के एडमिनिस्ट्रेशन का होल सोल उसको बनाइए, बिकॉज ही इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। वो पब्लिक के प्रति जिम्मेवार है। ये चीज उसको जो है बताना होगा कि हमें पब्लिक के लिए करना है, क्योंकि पब्लिक ने हमें वोट दिया है, न कि यहाँ के कलेक्टर की जिम्मेवारी होगी। तो ये एक मॉडल पर काम हो सकता है। मैंने एक सजेशन रखा है किताब के जरिए, और आप बच्चों के भी सामने मैं रख रहा हूँ कि आपकी थिंकिंग जो है कहीं ना कहीं गैल्वेनाइज हो इस मैटर पर, और आप अपनी बात रखें। तो मैंने कहा है कि ये जो विसंगति है, एनोमलीज है, कि थर्ड टायर को एग्जीक्यूटिव पावर है लेकिन सैलरी वेतन नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड टायर को सैलरी वेतन अच्छा है लेकिन उनको एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। तो ये असंतुलन जो है ना, ये दूर करना चाहिए। आज एमपी एमएलए भी कहते मिलेंगे कि हमसे ज्यादा पावर तो मुखिया पाए हुआ है, ग्राम प्रधान पाए हुआ है, और उसके पास खूब फंड है, हमारे तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये विसंगति दूर होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। फाइनली वी मस्ट गो थ्रू फॉलोइंग रिफॉर्म एजेंडा, a complete blueprint needed for all political parties in regard to organization, functioning, funding, electioneering, a screening of candidate that is not being taken into account,
अब तो बीजेपी की बात करें तो वो जहां जीतती है वो पहली बार चुने हुए विधायक को सीधे मुख्यमंत्री बनाती है। राजस्थान, गुजरात, अभी दिल्ली। तो ये एक नया कल्ट चला है, भगवान को मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या उनकी मोडस ऑपरेंडी है। क्या कोई अनुभव, कोई ज्ञान का भी कोई क्राइटेरिया है? पहले तो होता था कि चुनाव ये 8 टर्म जीते हैं, 9 टर्म विधायक रहे हैं, ये बड़े एक्सपीरियंस हैं, फलाना ढिकाना, उस पर बात होती थी। अब तो सारे फॉर्मूला चेंज हो गए। Ensuring proper livelihood for political workers. Nobody talks about this. आप ये देखिए कि कोई भी we are a political party driven democracy. हमारे यहाँ पार्टी डेमोक्रेसी है, ना कि कोई इंडिविजुअल डेमोक्रेसी। आप पार्टी में जाएंगे तभी डेमोक्रेसी का आप स्वाद ले पाएंगे। लेकिन पार्टी जो ये क्या बोलते हैं, अपने वर्कर जो है, जब वो पावर में आती है तो उनके वर्करों की चांदी क्यों हो जाती है? उन्हीं के नाम पर ट्रांसफर होती है, उन्हीं के नाम से ठेके मिलते हैं, उन्हीं के नाम से पोस्टिंग होती है। क्यों मिसयूज करते हैं? चाहे वो कांग्रेस का रिजीम हो, बीजेपी का रिजीम हो, या सारे रीजनल पार्टीज का रिजीम हो। और वो वर्कर भी कहता है कि हमने जोर शोर से प्रचार किया है तो आज सत्ता की मलाई हमें चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर के लिए लाइवलीहुड रखे, जिससे कि वो गलत तरीके से गवर्नेंस का मिसयूज न करे। ये मेरा सजेशन है। Somebody can tell कि ये तो बड़ा होलिस्टिक आइडिया है, बड़ा आइडियल है, लेकिन जब आइडियलिज्म आएगा तभी तो वो प्रैक्टिकलिज्म में जाता है। डेमोक्रेसी भी एक अपने आप में आइडियलिज्म था, आज प्रैक्टिस में है कि नहीं है? तो उसी तरीके से इन चीजों को हमें पहले लाना होगा, थ्योराइज करना होगा और आइडियल वे में पहले लाना होगा। पॉलिसी रिसर्च से गुड गवर्नेंस एंड एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ पब्लिक लीडरशिप। एक्टिविटी ऑफ ऑल पॉलिटिकल हैव टू बी रीडिफाइंड रिगार्डिंग देयर एंट्री, देयर नर्चरिंग, देयर फंक्शनिंग, their promotion, their eligibility of becoming office bearer, their candidature and also a compulsory training required for public leadership. अगर ये नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ डायनेस्टी कल्चर चल रहा है। हमारे यहाँ भाई भतीजावाद, जुगाड़वाद और रसूखवाद का कल्चर चलता है कि जब नेता चाहे किसी को भी दे देता है, क्योंकि ये चीजें फॉलो नहीं की जाती। Screening of candidate in a proper manner, guideline regarding raising and solving of public problem and complaints, transparent funding pattern of the political party. If you provide training and orientation courses for administration and police people, then why should we not have a पाठशाला for our political people? ये इसके लिए आप लोग हैं। इसीलिए मैं आपके इस इंस्टीट्यूट को और आपके इनिशिएटिव को मैं बड़ा लाइक करता हूँ कि देश में पहली बार, पहली जगह पॉलिटिशियन के ट्रेनिंग के लिए भी कोई इनिशिएटिव लिया गया है। जब हम ऑफिसर को, पुलिस को और सबको हम ट्रेनिंग देते हैं तो इतने बड़े पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम क्यों नहीं है? We need complete elimination of all sorts of identity politics and that should be supplemented by good governance politics. What is called identity politics? आप लोग बताइए। मुझे लगता है कि आप लोगों से जब तक मैं बात नहीं करूंगा तो मैं तो कहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दूंगा, लेकिन आपके जेहन में जाए तो मैं ये चाहूंगा कि आपका फीडबैक है कि व्हाट इज कॉल्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। टेल मी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, हाँ, कुछ भी अगर गलत सलत जो भी हो बताइए। नहीं, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हमारा सोसाइटी हेट्रोजीनस सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर तरह तरह के धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, कल्चर, डायनेस्टी, अलग अलग ये आइडेंटिटी है, सोशल आइडेंटिटी। और हमारी पॉलिटिक्स में जाति के नाम पर चीजें होता है, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। ये लड़के बिहार के हैं, ये तो समझते होंगे कि कास्ट किस तरीके से इसका ज्यादा यूज होता है एवरीवेयर। मैं ये नहीं कहता केवल बिहार में, एवरीवेयर कास्ट जो है ना पूरा कंट्रोल करता है इंडियन पॉलिटिक्स। फिर रिलीजन, आप देख लीजिए हिंदुत्व की पॉलिटिक्स तो कहीं, सिख की पॉलिटिक्स कहीं, इस्लाम मुस्लिम की पॉलिटिक्स तो कहीं, गोवा में और वगैरह वगैरह क्रिश्चियन पॉलिटिक्स चलता है। लैंग्वेज की, अभी तमिलनाडु से एक सवाल आया है कि ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला की। रीजन, दैट इज व्हाई वी हैव सो मेनी रीजनल पार्टी, उसमें रीजनल आइडेंटिटी को लेकर के बात होता है। बंगाली आइडेंटिटी, तमिलियन आइडेंटिटी, असमिया आइडेंटिटी, कश्मीरी आइडेंटिटी, पंजाब आइडेंटिटी। तो दीज आर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो कि पूरे तौर पे हमारी पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को जो है कंट्रोल करता है। तो ये चीज हटा करके हम गुड गवर्नेंस पॉलिटिक्स की बात करते हैं।
We need to establish a new micromanagement culture in each government office establishment, which is almost absent. आप जितने बैंकों में या तमाम सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे, कुछ भी काम करने जाएंगे, सब कोई कहेगा वो ऊपर से आएगा ऑर्डर, ऊपर से परमिशन आएगा, यहाँ पर नहीं है, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए। क्यों? जबकि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो ऐसा नहीं है, वहीं बैठ करके सब वो सोल्यूशन ढूंढ कर देंगे। तो माइक्रो मैनेजमेंट इसको बोलते हैं कि उसी ऑफिस में एक माइक्रो मैनेजमेंट हो जो कि हर सॉल्यूशन, हर कंप्लेंट का सॉल्यूशन निकाले, हर काम का जो है वे आउट निकाले। वी नीड टू इंजेक्ट प्राइवेट कॉर्पोरेट कल्चर इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, that is of cost consciousness, as I earlier told you, input output balance, strictness and smartness in dealing with client, and finally the sense of surplus and profitability. Same way, our private company need to adopt a welfare and democratic approaches to the government sector, which we generally see in the terms of implementing labor law in proper manner and making provision for the workforce. We need a new personal policy for whole country, have uniform pattern for all three tier of democratic governance, central, state and local. मतलब यह है कि काम नहीं तो दाम नहीं। अगर ये सरकारी ऑफिस में चलेगा तो जनता का ज्यादा भला होगा। जो ऑफिस में खर्च किया जाता है उसके पाई पाई का हिसाब और अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, तय होनी चाहिए। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट हैव आउटकम। आप बजट देखते होंगे, बजट आता है उसके सारे प्रोविजन पे मीडिया में डिबेट डिस्कशन चलता है। मैं भी उस दिन बड़ा व्यस्त रहता हूँ आर्टिकल लिखने में और टीवी प्रोग्राम में। उसके बाद 359 दिन उसमें क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, क्या फॉलो अप हुआ, कभी डिस्कस नहीं। अगली बार का लैंग्वेज बदल जाता है, टेक्स्ट बदल जाता है और नए सिरे से मार्केटिंग करती है सरकार और बताती है, और बाकी खाता बही का जो फॉर्मेलिटी है वो अपने हिसाब से कर दिया जाता है। For making government office free from corruption and non-work environment, I fully endorse contractual job policy provided with good support of working conditions. Contractual job का मतलब ये नहीं कि जब मन चाहे फायर कर दें, जब मन चाहे हायर कर दें। कोई आदमी परमानेंट 4 घंटा काम करे और कॉन्ट्रेक्चुअल जो है 14 घंटा काम करे। नो, देयर शुड बी लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि इनके लिए भी वही सुविधा तो आपके लिए भी वही सुविधा, आपके लिए भी वही फैसिलिटी तो उनके लिए भी वही फैसिलिटी। एक इन्वायरमेंट और एक लेवल प्लेइंग मस्ट बी फॉर ऑल एंड दैट शुड बी बिल्कुल एक बराबर होना। Public servant must characterize by its literal meaning, that is to serve people with high degree of urgency and sensibility. In practice, what we see public servant behave either as a master or as a machine. आप किसी अफसर के पास जाएंगे तो वो आपसे ऐसे सलूक करेगा कि हम इस काम के मालिक हैं। वो कभी पब्लिक सर्वेंट नहीं कहता, और या फिर आपको करता है तो दिखाता है कि मैंने तुम पर एहसान कर दिया, जबकि उनको पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है, पब्लिक के सर्वेंट उनको बोला जाता है, लेकिन वो पब्लिक के मालिक के भी अलग व्यवहार करते हैं। All above measure of reform will bring sea change in the quality of deliverance as well as provide a big jolt over various aristocratic institutes found in various rank and file of the world. Right to public service, आप इसके बारे में जानते हैं? राइट टू पब्लिक सर्विस क्या है? जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसी तरीके से राइट टू पब्लिक सर्विस में एक आप फिक्स डेट में आप अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जो भी है अलग अलग ऑफिस में जा करके आप बना सकते हैं। ये पब्लिक सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक्ट पारित किया होगा। फिर हमने पुलिस रिफॉर्म की बात की है, और एम्प्लॉय मस्ट हैव ओरिएंटेशन कोर्स कि वो किसी के सबसर्विएंट बने, ऑनेस्ट बने और गुड इंटेंशन, टारगेट ओरिएंटेड ट्रैकिंग ऑफ करप्ट एलिमेंट। ऑल डिपार्टमेंट मस्ट हैव व्हाइट पेपर व्हिच कैन टेल अबाउट व्हिच काउंट दे हैव इनवर्ट करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे विल चेक इट। मतलब वो ये निकाले एक पूरा रिपोर्ट कि कहाँ करप्शन है और कहाँ हम दूर कर सकते हैं, इसको व्हाइट पेपर बोलते हैं। बिल्कुल अपने बारे में सही रहस्य उठाना होगा। CAG के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इट शुड बी गिवन पेनलाइजिंग राइट ऑल्सो। ये केवल रिपोर्ट ला देती है, पार्लियामेंट में टेबल हो जाता है और फिर उसके बाद से इस पर कोई एक्शन या फॉलो अप वाली बात नहीं। Corruption cases taken by CBI or mandated by any government is just being done in selective manner.
सरकार जिसको चाहती है उसको टेकअप कर लेती है, जिसको नहीं चाहती है उसको हटा देती है। ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि देश में लाखों करप्शन केसेस होते हैं, सबको डिटेक्ट करो और सबको रिपोर्ट करो। प्रोसिक्यूशन और ये सब करने में तो लंबा टाइम लगता है। मुझे लगता है ये फिजूल की चीजें हैं। डिटेक्ट करिए, उसको नेमिंग सेमिंग ब्लेमिंग करिए, पब्लिक में लाइए और फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। जहां पर हीनियस क्राइम हुआ हो या बहुत बड़े अपराधी का सिंडिकेट हो, उसके लिए प्रोसिक्यूशन करिए, कोर्ट में जाइए। CBC has made just like an eye-washing agency needs to be more empowered. CBC को पावर नहीं है, CBI को पावर है। ये केवल सजेशन दे सकती है। All anti-economic offences, ED, CEIB, anti-economic are being used in selective manner. All the agency must be given target to apprehend corrupt person in lakhs, not in few hundred. CBI का एक साल का आप आंकड़ा देखेंगे तो 600 या 650 या 700 होता है, लेकिन मुझे लगता है लाखों में ये संख्या होनी चाहिए। That is why I talked about the structural corruption. If any graft agency, तो मैंने पहले भी बोला, ब्लैकमेलिंग और करप्ट प्रैक्टिस हो उनके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। All judicial trial minimum for corruption must have a clearance time for minimum 1 day and maximum 30 days. अगर जुडिशियरी में कोई केस जाता है तो 30 दिन से उसका ज़्यादा म्याद नहीं होना चाहिए। मैंने ये सजेशन दिया है। परफॉर्मेंस ऑफ एंटी ग्राफ्ट एजेंसी इन स्टेट इज पैथेटिक वन। राज्यों में इनका बड़ा अच्छा काम नहीं है, बहुत ही देरी करते हैं। We need to effectively implement the concept of regulatory authority. जैसे कभी मैंने बताया कि प्राइवेट और पब्लिक जहां हो, एक रेगुलेटर हो जो कि ये बताए कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड में एक हिसाब से एक नियम के तहत काम करना है। जैसे आप किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, पॉलिसी खरीदते हैं, तो उन्हें भी टैक्स की छूट मिलती है जितना कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस को मिलती है, इसलिए कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला हुआ है, सबके साथ ये बराबर ट्रीटमेंट। There must be harsher punishment for hoarding. होर्डिंग समझते हैं? जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, एडल्ट्रेशन, मिलावट, डुप्लीसिटी मतलब कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाना, अंडरवेट, कम तौल, ओवर प्राइसिंग, ज्यादा कीमत, स्मगलिंग, तस्करी, हवाला ट्रांसफर, जो लोग पैसा बाहर से अवैध भेजते हैं, डिसप्रपोर्शनेट एसेट की आमदनी उतनी है, एसेट उससे ज्यादा है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, आय को डिस्क्लोज नहीं करना, there must be complete ban for Ponzi scheme and to check NBFC company, particularly those who don't have a full accreditation to run financial business. ये इकोनॉमिक करप्शन की बात है। नो लेंडिंग, आज आप देखते होंगे बैंकों से लोन लेकर के लोग फरार हो जाते हैं, तो लो लेंडिंग मस्ट बी अलाउड विदाउट सेम वैल्यू सिक्योरिटी। अगर ये हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी जिसकी कि मैंने बात की, पॉपुलेशन पॉलिटिक्स, उसको एबोलिश करिए और उनको अलग अलग तरीके से इंपावर करने का प्रयास करिए। ये मोबाइल आधार और डीबीटी के जरिए जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, ये सजेशन है। हालांकि सरकार 30 लाख करोड़ डीबीटी के ही जरिए ट्रांसफर कर रही है, जो कि अच्छी बात है। पे कमीशन अभी भी इकट्ठा हुआ, मैंने कहा है ये हटाओ और केवल प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों को, हर व्यक्ति को इंक्रीमेंट दो। ये मनरेगा प्रोग्राम गाँव में मिट्टी भरो और मिट्टी खोदो और मिट्टी भरो और मिट्टी फिर से भरो, ये पैसे की बर्बादी है। मैंने कहा है कि ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। एसेट क्रिएट होगा तो आगे चल के काफी फायदा होगा। स्टॉप करप्शन विद फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, अब तो फ्री अनाज एक बन गया है। अभी CAG का आंकड़ा आया था कि 30% उसमें लीकेजेज है अभी भी। तो अच्छा है कि आप उनकी आमदनी बढ़ाएं, आप उनके पेंशन बढ़ाएं, आप उनको रोजगार दें, बाजार से खरीदें तो किसानों को भी बेहतर दाम मिलेगा, जिसके लिए किसान इतना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक पॉलिटिकल करेक्टनेस है। जो बीजेपी फ्रीबीज का विरोध करती थी, उसने भी सस्ता और फ्री राशन के जरिए एक तरह से पॉलिटिकल वोट बैंक अपना बनाया। इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम PM आवास योजना है, इसमें भी बड़ा करप्शन होता था। तो मैंने इसमें लिखा है कि एक नए डिजाइन का घर बिल्कुल टॉयलेट के साथ बनना चाहिए, जो कि अभी 1.25 लाख रुपए में उस टेक्नोलॉजी पर आप अच्छे से बना सकें। उसमें बेनिफिशियरी भी करप्शन करता है, पैसे लेकर के वो अलग अलग खर्च कर देगा, घर नहीं बनाएगा, घर बनेगा तो अच्छा नहीं बनेगा, रोड के किनारे बन जाएगा। तो मैंने सलाह दी है कि हर गांव में जो घर मजरूआ जमीन होता है, वहां पर एक कॉलोनी नुमा सुंदर टॉयलेट के साथ एक क्वालिटी ड्रिवन घर बनाया जाए और उनको फिर हैंड ओवर किया जाए। इसके सामने जितनी प्रॉब्लम है वो हम अपने तरीके से दूर कर सकते हैं।
कर टैक्स इवेजन होता है कर चोरी को, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी मुनाफा कमाते हुए लोग टैक्स नहीं देते हैं, उसके लिए मैंने कहा कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जैसे आजकल जितने कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं, सड़क नाली जो भी आप देखते होंगे सबसे ज्यादा करप्शन होने के चांस होते हैं। तो हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बिल्कुल क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो और जो व्यक्ति कंस्ट्रक्ट करे उसको 15-20% उसका प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि फाइनेंस और सुपरविजरी करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो सैलरी लेते हैं वो ज़्यादा एस्टिमेट बना के या ठेकेदारों से कमीशन लेके क्वालिटी भी खराब करते हैं और पब्लिक मनी का मिसयूज कराते हैं। ये करप्शन का एक बड़ा पार्ट है। एक मेरा हाईलाइट है कि कौन सा ऐसा आइडियल गवर्नमेंट है जो करप्शन को लेकर बढ़िया काम कर सकती है, वो ये है हाउ मेनी लीकेजेस गवर्नमेंट इज एबल टू डिटेक्ट, कितनी लीकेजेज कौन गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खोज सकती है। लेकिन आजकल पब्लिसिटी में ढकने और टोकने का काम किया जाता है। जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वो हमेशा कहती है मेरे यहाँ सब कुछ ठीक है, अगर कोई आ गया तो मीडिया को डरा दिया, आरटीआई एक्टिविस्ट को डरा दिया या सरकारी चीज़ों के जरिए उसको ढकने तोपने का काम किया गया और पॉलिटिकली उसको अपना मैनेज किया जाता है। हाउ मच बेटर डिलीवरी मैकेनिज्म ये गवर्नमेंट है, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ को प्रोवाइड करते हैं वो कितने अच्छे से हो रहा है। हाउ मच ऑस्टेरिटी ड्राइव गवर्नमेंट इज अप्लाइंग टू द गवर्नमेंट, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कम से कम सरकार खर्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी दे। हाउ मच परफॉर्मेंस एंड वर्क ऑडिट ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर बीइंग डन, हाउ मच रिसोर्स ट्रांसफर इज बीइंग मेड थ्रू टेक्नोलॉजी, जो चर्चा कर चुका। हाउ मच कॉस्ट कॉन्शियस है गवर्नमेंट इज, सरकार देखे मेरे फालतू खर्च नहीं हुए। और व्हाट कॉस्ट ए क्वालिटी पब्लिक कंस्ट्रक्शन इज रेंडर्ड अपॉन बाय एनी गवर्नमेंट, हाउ मच रेवेन्यू ए गवर्नमेंट इज एबल टू जनरेट विदाउट बर्डनिंग द पब्लिक मच। जैसे अभी इनकम टैक्स की छूट दी गई, बड़ा अच्छा काम हुआ, लेकिन सरकार ने साथ साथ ये प्लान बना लिया है कि मेरा रेवेन्यू का लेवल कम नहीं होगा, वो अलग अलग तरीके से टैक्स बेस बढ़ा करके या अलग अलग तरीके से जहाँ लीकेजेज है उसको दूर करके बढ़ाएंगे। इट्स अ गुड पॉलिसी। हाउ मच एफिशिएंट यूज ऑफ पब्लिक एसेट इज बीइंग डन, अगर मान लीजिए सरकार का एसेट है तो इसका जैसे मैं देखता हूँ कि करीब करीब 600 यूनिवर्सिटी स्टेट के और सरकार के, और उसमें आधा दिन जो है कोरोना पीरियड ही चलता है, मतलब यह है कि कोई क्लास ही नहीं होता और उसमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेबोरेटरी रिसर्च या कोई और तरीके का यूज वो एक तरह से बेकार नहीं होना चाहिए। हाउ मच बेनिफिट बीइंग एक्रूड टू द टारगेट पीपल, हाउ मेनी कल्प्रिट ऑफ करप्शन आर बीइंग कॉट, भ्रष्टाचार के अपराधी कितने ज्यादा पकड़े जाते हैं। एजेंडा ऑफ फंडामेंटल चेंज टू न्यू चेंज, our system should have a orientation of neither communism or capitalism nor socialism, it must have any reform। मैं कहता हूँ कि हम लोग ज़्यादातर लोग बढ़ जाते हैं कि ये बीजेपी वादी है तो ये कांग्रेस वादी है तो ये दक्षिणपंथी है तो ये वामपंथी है। मुझे लगता है केवल सुधारपंथी होना चाहिए जो सुधार कर सके, और वोट हमेशा पार्टी के बजाय कैंडिडेट को देना चाहिए, केवल सी कैंडिडेट क्वालिटी है। There should be no hypocrisy, rather transparency in our own public discourse. There should not be set cleach of rhetoric, rather we must have a real life issue. We should not have the atmosphere of more sloganeering, rather there should be an ideology based change in every sphere of public life. We should not be misleading anyone, rather it should be showing the right path to the people. There should be no status cohesion, rather we must always good governance, good politics, good society and imbibing good culture. We must have no place for identity politics, again I am repeating this. Rather it should be oriented with good governance. There is no need of education to make your career in politics. इस पॉइंट पर आप लोग गौर करें। हमारे भारत में अभी भी जिसको पॉलिटिशियन बनना है वो सबसे पहले जाके जंतर मंतर दिल्ली में जाएगा या यहाँ पे कोई जगह जाएगा झंडा लेकर के, चाहे वो पढ़ा हो लिखा हो या गढ़ा, न पढ़ा हो न गढ़ा हो न लिखा हो न सोचा हो न चिंतन किया हो न संविधान विधान सिस्टम की जानकारी हो, झंडा उठा लिया, अब वो कभी चमक जाएगा तो पता चला कि मुख्यमंत्री बन गए, बाकी जजेस ही सारे अफसर सारी चीज कंट्रोल करेंगे और फिर जो है न्यूसेंस क्रिएट होगा हमारे सिस्टम में बिटवीन पॉलिटिकोक्रेसी एंड बिटवीन ब्यूरोक्रेसी। तो ये मैं कहता हूँ कि एजुकेशन के बजाय रादर वी नीड टू कल्चर द स्कूल्स ऑफ पब्लिक लीडरशिप, जो ये आपका स्कूल मुझे लगता है आप लोग को उत्साहित होना चाहिए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल सीखिए, अभी आप लोग प्रिमेटिव स्टेज में हैं, शुरुआती स्टेज में हैं, लेकिन मैंने ये सब जो बताया है
आपकी थिंकिंग को काफ़ी मैच्योर और बहुत अपर लेवल पे ले जाएगा, और तब आप एक नेशनल थिंकर बन पाएंगे, नेशनल एग्जीक्यूटर बन पाएंगे। और फिर आपके पॉलिटिक्स का जो स्टैंडर्ड होगा, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन में बड़े बड़े स्टैंडर्ड वाले लोग नहीं रहे, जरूर रहे, लेकिन वो कोई फॉर्मल पढ़ाई करके नहीं है, इनफॉर्मल है। जैसे कि अरुण जेटली, वो लाजवाब डिबेटर थे पार्लियामेंट में। वो ठीक है कि जमीन पर वोट लेने की कला उनको नहीं आती थी, ही नेवर वन इलेक्शन, लेकिन वो फैंटास्टिक डिबेटर थे, उनको हर एक चीज की जानकारी थी, उनको कोई व्यक्ति मिसलीड नहीं कर सकता था। मैं अरुण जेटली का वैसे ही नाम ले लिया, सो मेनी, देयर आर सो मेनी। इवन नरेंद्र मोदी जी, तो वो तो फॉर्मल उनकी उतनी एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन थ्रू प्रैक्टिस वो एक ग्रेट विजनरी है, ग्रेट हार्ड वर्किंग पर्सन है। अब ये बात अलग है कि पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स में मेंटेन करना है, तो पॉलिटिकल पार्टी तो स्वार्थी होती है, पॉलिटिकल लीडर भी स्वार्थी होते हैं। इट इज ओनली रेगुलेटर हु हैज टू टेक लुक आफ्टर एवरीथिंग। और ये बताइए पॉलिटिक्स का रेगुलेटर कौन है? आप बताइए, कुछ भी सोच के गलत सही, कोई एक बताइए, आप बताइए पॉलिटिक्स का रेगुलेटर कौन है हमारे देश में? जुडिशियरी नॉट ए डायरेक्ट वे, जुडिशियरी तो सब चीज के लिए, न्याय के लिए, वो डेमोक्रेसी का ऑर्गन है, पिलर है, जो पॉलिटिक्स को करती है। पब्लिक यू कैन नॉट से एज ए टेक्निकल रेगुलेटर, पब्लिक तो आपका क्लाइंट है। टेक्निकल मीडिया, मीडिया भी है वे, आपका नहीं, ब्यूरोक्रेट तो पार्ट ऑफ, वो तो गवर्नेंस के पार्ट है जी। वोटर नहीं, उन्होंने पब्लिक बोला, वोटर पब्लिक है, नहीं एमएलए एमपी तो वो पॉलिटिशियन बन गए। अब जैसे एक खिलाड़ी जब खेलता है मैदान में, तो कौन आउट हुआ, किसने एलबीडब्ल्यू किया, किसने मिसबिहेव किया, वो खिलाड़ी खुद थोड़े करेंगे, अंपायर बैठे। तो सेम में इसका अंपायर कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज का, इलेक्शन का और पॉलिटिक्स का, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, दैट इज द करेक्ट। बैंकों का रेगुलेटर कौन है? जो बैंक का एक नियम कानून की डिपॉजिट इतना लोगे, इतना ज्यादा पेनल्टी है, यस आरबीआई। स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सीबी। वेरी करेक्ट, वेरी, अब आप लोग कहा है। तो इस तरीके से रेगुलेटर जो है ना, वो अपने अपने रोल अदा करते हैं। अब जैसे मीडिया का एक रेगुलेटर है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आउट ऑफ वे अगर कोई मीडिया कोई रिपोर्टिंग करता है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसके लिए नोटिस देती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी है ना। हाँ, तो इस तरीके से अलग अलग रेगुलेटर बनाए। जैसे कि यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो एक तरह से रेगुलेट करती है। एआईसीटी है जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए है, सिलेबस के लिए सीबीएसई है, एग्जामिनेशन के लिए एनटीटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस तरीके का, और अलग अलग टेक्निकल एग्जाम के लिए नीट और जेईई है। तो ये सब एक तरह से रेगुलेटर बनाए। तो हाँ, मैं कहाँ पर था? against to make your career in politics. Second, there is no new agitation to make career. There should be no education and counter education on issue of corruption. अब जैसे करप्शन पर, जिस पर मेरा वर्क है, आप पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन देखेंगे ना, तो वो एंटी करप्शन के लिए कुछ भी काम नहीं करता। वहां पर आपका वो वाक चातुर्य ऐसा होना चाहिए और पैतरा ऐसा आना चाहिए, नैरेटिव ऐसा आना चाहिए कि चीजों को घुमा रहे, जिसके लिए प्रवक्ता बैठे होते हैं टीवी में, वो अपनी चीज को कैसे छिपा के और अगले की चीज को स्कूप कर देते हैं, और जहां वो खुद फंसेंगे तो उस मैटर को साइडलाइन कर देंगे। ये सब पॉलिटिक्स का गेम है। तो इसमें काउंटर एलिगेशन और नॉन एलिगेशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन जो है वो एक बड़ा न्यूसेंस क्रिएट करती है। जैसे मैं बता दूं, इस सरकार पर तो बहुत आरोप लगता है कि अपने करप्शन को छिपा लेती है, लेकिन अभी इन्होंने बहुत बड़ा ऑफिस बनाया बीजेपी का, और उनके पूरे हर 600 डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बने बीजेपी के। लोगों ने कहा इतना पैसा कहाँ से आया, सब ऑफिस बन गया। और कांग्रेस पार्टी भी कहती थी कि ये तो सबका करप्शन वो करते हैं पता। अभी इनका वोट, वो जो क्या बोलते हैं, इलेक्शन जो फंड था, ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो उसमें तो 2/3 से ज्यादा पैसा बीजेपी ने लिया।
तो बीजेपी ने कहा जो है पर रूल था, पर कानून था। उसी तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी का खुद का सेंट्रल ऑफिस 200 करोड़ का बनकर के तैयार हुआ है। तो लोगों ने कहा कि उस समय तो आपने बड़े रेगुलेशन लगाया हुआ, आपने खुद बनाया, आप अपने बारे में नहीं बताइए। तो एक मैं जस्ट एग्जांपल के लिए करा, आई एम नॉट साइटिंग एनी बीजेपी और कांग्रेस, मतलब आई वांट टू रिवील दिस फैक्ट कि एक पैरामीटर होना चाहिए जो सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। देयर शुड बी नो पॉपुलिज्म रादर नेट गेन टू द पब्लिक, कि पब्लिक को असल में फायदा कितना हो रहा है ये काउंट करने का काम मीडिया का है, एनालिसिस्ट का है, पॉलिटिकल कमेंटेटर का है। वी डोंट नीड टू प्रोवाइड सब्सिडी, वी रादर नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो देखिए सब्सिडी और सपोर्ट में अंतर है। सब्सिडी क्या है कि पैसे का मिसयूज है, और सपोर्ट क्या है, अब जैसे रिजर्वेशन और एक वर्ड है एम्पावरमेंट। रिजर्वेशन क्या है कि हमारे अंग को मजबूत नहीं किया गया, वैसाखी पकड़ा दिया गया कि चलो तुम वैसाखी पकड़ लो। और एम्पावरमेंट क्या है कि हमारा अंग कमजोर है तो मेरे अंग को मजबूत करने के लिए पूरा काम होगा, सरकार सारे खर्चे करेंगी, और फिर जब हमारा अंग मजबूत होगा तो हम फिर दौड़ेंगे और पहले से जो मजबूत जिनका अंग है उनको भी पीछे कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। सेम वे सब्सिडी एंड सपोर्ट। अगर हम सब्सिडी देंगे कि आप इतना पैसा लाओ, मशीन खोलो और मशीन खोल करके आप पैसे कमाओ, और अपना तो आपको लगेगा सब्सिडी मिल ही गया, चलो मशीन को बेचो और पैसे रखो। और सपोर्ट होगा तो मशीन तो देंगे, आप कमाओ, मजबूत बनो, अपने पैर पर खड़े हो और मशीन वापस करो। ये पॉलिसी, तो इन दोनों में ये अंतर है। लेकिन आप बिल्कुल बीमार हैं, बिल्कुल अपंग हैं, आपदा काल में है, तब ये पॉलिसी नहीं, तब तो सरकार को हर हाल में फंड करना है, मदद करना है। इट इज नॉट मेकिंग अबाउट एग्रीकल्चर वीक। एग्रीकल्चर के लिए बड़ा आंदोलन हो रहा है, इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोफेशन ऑफ सब्सिस्टेंस है, निर्वाह पेशा जिसको बोलते हैं, कि आप खेती करते रहो और अपने पुरखे का जो है ना झंडा उठाते रहो। प्रॉफिट कमाने की बात हम लोग नहीं सोचते, अब धीरे धीरे इस पर सोचा जाने लगा है। दैट इज व्हाई फार्मर्स आर डिमांडिंग फॉर लीगल स्टेटस ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओनली गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर रनिंग देयर फूड पीडीएस सिस्टम। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर सीजन में दाम कम होता है तो कम दाम पर खरीदता है। जैसे आपके नासिक में प्याज खरीदा जाता है कि कभी 10 पैसे किलो तक गया है प्याज का, ओवर सप्लाई होता है, सीजन में गिर जाता है। अगर वही एमएसपी होगा तो नोबडी, whether government body or private body, they are bound to purchase the items of farmers not less than minimum support price confiscated by government in a legal manner. It is not about scrutiny, perceived superiority and democracy, rather we must enable the legislature above all pillars of democracy. आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो डेमोक्रेसी में किसकी सबसे ज्यादा चलती है? और डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव, जो मिनिस्टर, जो बड़े अफसर हैं, जो सेक्रेटरी हैं, और हमारी डेमोक्रेसी में कहा गया है सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर, यानी विधायिका ही सर्वोच्च रहेगी, फॉलोड बाय एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एंड मीडिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है। आई एम टेलिंग यू, मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया है कि मीडिया नाम की एक संस्था होगी जो डेमोक्रेसी को चेक एंड बैलेंस करेगी। नो, नो वेयर इट हैज बीन मेंशन्ड। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज फॉर एवरीबॉडी, ये सबके लिए है। उसी के अंदर मीडिया को जो पैसे वाले हैं वो अखबार खोल लेते हैं, जो बिल्कुल अपने जीवन दांव पर लगा लेते हैं, वो पत्रकार बन जाते हैं, और वो कलम लेके, झोला लेके और अपना कैमरा और अपनी ज्ञान चक्षु लेकर के घूमते रहते हैं। वही जुडिशियरी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा है, जुडिशियरी के पार्ट में लेजिस्लेचर और जजेज आते हैं, तो जजेज को तो गवर्नमेंट फंड करती है, उनके लिए कोर्ट रूम बनवाती है, उनके चैम्बर बनवाती है, उनको तमाम सिक्योरिटी देती है। और लॉयर, उनको सरकार तो नहीं फंड करती, चैम्बर तो बनवा देती है, लेकिन वो धड़ल्ले से उसके चार्ज लेते हैं सरकार। जबकि जस्टिस फंडामेंटल राइट होना चाहिए, फ्री मिलना चाहिए, बट दैट इज नॉट इन आवर डेमोक्रेसी। लेकिन न्यूज जिसके लिए लागत लगता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं प्रोवाइड किया,
वो कहीं ना कहीं कॉस्ट ओरिएंटेड चीज है, तो वो सब लोग फ्री में लेना चाहते हैं। इनडायरेक्टली इट इज बीइंग क्रॉस सब्सिडाइज्ड बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के द्वारा, तो एडवर्टीजमेंट का माया जाल, वो न्यूज और एडवर्टीजमेंट में हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जो न्यूज समाज के व्यापक इंटरेस्ट में नहीं है वो विज्ञापन है, और जो विज्ञापन समाज के इंटरेस्ट में है तो फिर वो उससे रेवेन्यू नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये चीज जो है हम किसी कल वाले क्लास में आपको बताना चाहेंगे। तो दीज आर ऑल द थिंग्स। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के भी एक अलग पार्ट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के भी पार्ट है, उस चीज को हम मेंशन करेंगे। एंड द सेकंड पार्ट होगा कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड कैंपेनिंग, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ contesting 2 Lok Sabha elections in year 2009 Lok Sabha and in year 2014. I contested election as an independent candidate after drafting local manifesto for my constituency, that is called Valmiki Nagar, which comes under West Champaran district of Bihar. And before that 2009 it was reserve constituency, but under delimitation it was converted into general constituency. Then I stand up for that election, और उसके लिए मैंने 800 गांव की पदयात्रा की। मैंने चंपारण में भितिहरवा गांधी जी का एक आश्रम है जहां उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, वहां पर मेरी पहली मीटिंग हुई। वहीं पर भारत परिवर्तन अभियान और उसका ब्रांच एक चंपारण परिवर्तन अभियान बना, और मैंने 800 गांव की पूरी एक तरह से भ्रमण किया, यात्रा की, और फिर मैंने एक लोकल मैनिफेस्टो निकाला जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का पहला लिखित मैनिफेस्टो है। उसका शीर्षक था चंपारण बनेगा भारत का चैंपियन। उसमें मैंने जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, इलेक्शन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक अवेकन करना, कि पब्लिक को मैं चुनाव लड़ करके, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं नेता बनूं या फलाना बनूं या संसद में जाऊं। एज ए रिपोर्टर, एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट मुझे संसद में जाकर वहां की कार्रवाई देखने का सब मौका मिला था। लेकिन मैं चाहता था कि जो मैं सोचता हूँ, लिखता हूँ, देखता हूँ, जो मेरी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, उसको भी वैसे लोग भी पॉलिटिक्स में जाएं। जैसे कि आप लोग का एक नारा है पॉलिटिक्स फॉर चेंज, तो इन दैट कनेक्शन आई कॉन्टेस्टेड दैट इलेक्शन, बट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शनियरिंग पॉलिटिक्स इज डिफरेंट बॉल गेम। इट इज ड्रिवन बाय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मनी पॉलिटिक्स, मसल पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स, and it takes time. It's not easy to change the heart and soul of the public, because public is basically ignorant, and public is also very स्वार्थी। वो चाहती है कि मुझे क्या फायदा हो। लेकिन above all these things, जो ब्रांडिंग है पब्लिक के माइंड में, जो पॉलिटिकल ब्रांडिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से ज्यादा है। आज कोई भी आदमी से कुछ भी आप बात कर ले, चाहे कितना भी बड़ा उनके दुख सुख को बदलने वाला हो या फिर उनके जीवन में बदलाव लाने वाला हो, पार्टी से जब तक कोई नहीं आता है, पब्लिक डोंट टॉक देयर कैंडिडेट। क्योंकि वी आर बेसिकली प्रिडोमिनेंटली वी आर ए पार्टीजन पॉलिटिक्स, पार्टीजन डेमोक्रेसी। वी आर पार्टीजन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज प्रिवेल। इसीलिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसको 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल लग जाते हैं। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी और करीब 60 सालों के लंबे स्ट्रगल के बाद वो पार्टी पावर में आई। रादर पावर वाज ट्रांसफर्ड टू देम, और उसके बावजूद वह पार्टी 35, 40, 45, 50 सालों तक रही, टिल अदर पार्टी रिप्लेस्ड है, और उन पार्टियों को भी लंबा टाइम लगा। तो उसी तरीके से जब चुनाव आप लड़ते हैं तो पब्लिक के भी मूड बदलने में टाइम लगता है। अगर पब्लिक बहुत सेलिब्रिटी हो, अगर चुनाव लड़ने वाला, फिल्म इंडस्ट्री का हो या कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, या कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने ही किसी को लॉन्च कर दिया हो, कोई बड़े नोन चेहरा, तो दे एबल टू विन इलेक्शन। और बाकी कास्ट इक्वेशन, कम्युनिटी इक्वेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, योर सर्विस, योर अटैचमेंट विद द पब्लिक, so many factors are there. So I will tell you about contesting election and the mode of campaigning. So I think now this is your turn now, और आप लोग सवाल करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं। ये बात अलग है कि मैंने अपने लेवल पे जो आपका डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन पे वो सारी चीज़ें जो आपको बताई जानी बहुत ज़रूरी है,
That I tried my level best to tell, and just I मतलब कि revealed by all studies, all experiences, all of observation, all मतलब कि जो historical जो एक उसका एक perspective है for last 30 to 35 years, that I try to tell you. आप एक एक करके हर व्यक्ति कोई भी सवाल करे तो I will be happy to answer. In the remaining time, I can answer your question. Then we have a post-lunch session. Then I will interact with you on this topic. चलिए आप लोग एक एक करके पूछिए. अब अगर नहीं हो तो ज़्यादा हो गया तो बंद कर